ECG, which is electrocardiogram or electrocardiograph. And another topic that we are going to learn is the different types of diseases which are associated with heart. Heart से जो अलग अलग diseases जो associated होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, तो फर्स्ट कमिंग टू ECG. Now यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है. नॉर्मली Here the electrocardiograph, जो ये वर्ड है electrocardiograph, यहाँ पे ग्राफ जो वर्ड है, ग्राफ मतलब आप जैसे देख रहे हो कि दिस साइड यहाँ पे आपको बार्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बार्स हैं, ठीक है ना? एंड इसी प्लॉट द ग्राफ अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस इसको लेके कोई भी ग्राफ फॉर्म करते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बार के फॉर्म में और इन द फॉर्म. This is said to be a graph. Okay, the graph can be obtained on a piece of paper. It can be made on a piece of paper. But here there is a twist. The electrocardiograph means the technique which is used to measure the activity of the rhythmic activity, measure the phenomena, the activity of your heart. It is measured, it is tested, or it is seen, it is observed by a technique which is known as the electrocardiograph. Electrocardiograph is technique का नाम है by which we measure the way in which your heart works. Okay, so heart की वर्किंग हम इससे मेजर करते हैं या उसको देखते हैं कैसे हार्ट, whether the heart is working properly or not. So while if we are learning about working, means the heart is contracting, ठीक है? हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या हार्ट क्या कर रहा है और इट इज रिलैक्सिंग, ठीक है? आपको इसके वर्ड मैंने बताए थे. आइदर योर हार्ट इज इन व्हिच फेज, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए कौन सा फेज यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल. आइदर आवर हार्ट इज इन सिस्टोल फेज और आवर हार्ट इज इन रिलैक्सिंग मूड, इन अ रिलैक्सिंग फेज व्हिच इज द डायस्टोल, ठीक है? So whenever we want to check the activity of human heart, whether it is contracting or relaxing at a proper rate, it is working properly, or there is a rhythmic contraction relaxation going inside the heart, or there is a regular maintenance of systole and diastole. The technique that we used is the electrocardiograph, ठीक है? यहाँ पे ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इस पूरी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस पूरी टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके, एंड फॉर मेजरिंग दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देयर वी यूज अ मशीन. हम इसके लिए एक मशीन यूज करते हैं जिसके अंदर से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाहर आता है, एंड दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन shows the working of heart in the form of contraction and relaxation in the form of certain graphical representation. So that graphical representation is known as the electrocardiogram, ठीक है? तो चेंज है. ग्राफ का मतलब यहाँ पे टेक्निक है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी, graphical representation जो हमारे पास आएगी when we want to check the activity of heart working. So we can obtain the activity of heart on a graphical representation on a piece of paper. तो जो हमारे पास piece of paper होता है उसको हम electrocardiogram कहते हैं, और जो टेक्निक यूज करते हैं मशीन से, ओके, by using machine, by using this graphical representation, इस पूरी टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Now you may have seen that if there is some elderly people in your home, आपके घर में कोई एक elderly person है तो, और अगर उनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या एक नॉर्मल चेकअप पे जब हम जाते हैं,
Actually, के normal checkup में doctor never uses this electrocardiograph technique. Okay, if anybody has certain problem or certain issue which is related to the heart, then only the doctor suggests or the doctor indicates you for having a electrocardiograph. Okay, डॉक्टर ये आपको कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवा के देखो कि what is the graphical representation. ओके, फिर आप जब ये टेस्ट करवाते हो तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो लेके आप डॉक्टर को बताते हो, या वहीं पे अगर कोई अटेंडेंट है या कोई डॉक्टर उसी समय है ईसीजी की जब टेक्निक हो रही है, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको देख के वो बता सकते हैं whether the heart is working in a regular manner. ठीक है, इन दोनों में क्लियर का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? जब हम इस टेक्निक के लिए जाते हैं, ये टेक्निक क्यों यूज होती है? हार्ट की वर्किंग को मेजर करने के लिए, ठीक है, और ये देखने के लिए whether the heart is working properly. Okay, so the technique is electrocardiograph, and in this technique the working of heart comes in the form of a graph on a graphical. The representation comes on a piece of graph paper that is known as the electrocardiograph. ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया, राइट? ओके, अब मैंने अगर आपको ध्यान से कल की क्लास में बताया था कि सपोज ये है आपका कोई ट्रायंगुलर हार्ट बनाया है, मैं हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, आपको उसका रीजन मालूम है, बिकॉज़ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डिवाइड किया हमने, ठीक है ना? इन यस्टरडेज क्लास व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल, हमने इसके 3 फेजेस पढ़े थे, राइट? ओके, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मेरी साउंड थोड़ी सी लो कर रही है, अब ऐसे काम चलाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि एवरीवेयर द क्लासेस आर गोइंग ऑन, ओके, सो वेरी फ्यू पर्सन आर देयर टू टेक केयर अबाउट द टेक्निकल इश्यूज, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसमें, ठीक है? ओके, तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ, अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इफ यू कैन मैनेज दिस, विल मैनेज विद दिस, ठीक है? इतने मुझे भी वैसे बोलते समय लग रहा है कि थोड़ा सा इश्यू तो ये होगा, ओके, सो मैनेज हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा एक तो नहीं हो रहा ये बच्चों? मैं साउंड बढ़ने पे आ रहा है, साउंड मैम जब आप साउंड थोड़ा लाउड करती हो तब आता है, कोई नॉर्मली तो नहीं आता। यहाँ पे तो साउंड लाउड, अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज्यादा तेज बोलूंगी तो ज्यादा ही बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, सो विल मैनेज विद दिस, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ऑलरेडी क्लास डिले 22 हो ही गया है, दूसरा टॉपिक भी करना है, ओके, सो ये समझ में आया। और कल हमने जब कार्डियक साइकिल पढ़ा था तो उसके हमने 3 फेजेस पढ़े थे, अगर आपको पहले फेज में क्या हुआ, पहले फेज में कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताइए कि पहले फेज में जो पूरा हार्ट है वो रिलैक्स्ड है, सो दैट द डीऑक्सीजनेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कम इनसाइड द हार्ट, ठीक है, ओके। फिर क्या होता है कि जब हार्ट के अंदर ब्लड आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, नाउ बोथ ऑफ द atrial, the two atria, they will contract, they will push the heart in the forward direction, means towards the ventricle, ठीक है। सो जब जॉइंट डायस्ट्रोल था उसके बाद हमारा था पॉइंट वो था एट्रियल सिस्टम, मतलब एट्रिया कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है इसमें कुछ वेव्स बनती हैं, ओके, आपकी जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर भी कुछ वेव्स जाते हैं, उसके नीचे भी जाती है, ठीक है ना। तो पहला कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो हम जॉइंट डायस्ट्रोल से याद करेंगे, बट when we are learning for cardio electrocardiograph, हम यहाँ पे इसको पहले वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे कि वेव का मतलब क्या है, ठीक है। तो वेव के लिए विल ड्रॉ इट एंड विल सी, ओके। तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो वेव बनती है दैट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल, इट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल सिस्टम, ठीक है। पहली वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बन रही है दैट सिग्निफाइज द एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल जब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आगे ब्लड कहाँ पे पंप करेंगे, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल्स विल पंप द ब्लड टुवर्ड्स द
बॉडी सर्कुलेशन, ठीक है ना? ओके, सो द नेक्स्ट विल बी द वेंट्रिकुलर। यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टोल और डायस्टोल? वेंट्रिकुलर, यस, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल। क्यों? पहले एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को यहाँ पे पुश कर दिया, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को आगे पुश कर देंगे एओर्टा और वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के पास, ताकि लंग्स के पास चले जाए, वहां से CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है ना? ओके, और एओर्टा जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेकंड फेज आपका आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टम। और थर्ड फोर्थ जो आपका आता है, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया, ऑरिकल से ऑलरेडी वेंट्रिकल्स में आ गया था, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल गया, ठीक है, देन इट मींस योर हार्ट इज इन रिलैक्स्ड पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा द वेंट्रिकल्स एंड आप ये कह सकते हो कि जो हार्ट है आपका वो आ गया है आपका रिलैक्स्ड पोजीशन, ठीक है। Now there is in terms of, क्योंकि आप कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओरिजिनेट होती है SA नोड से, the electrical signals from SA node transfers to AV node, from AV node it transfers to Purkinje fiber and to the bundle of cells, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो ये एट्रियल सिस्टोल को स्टार्ट कौन करता है? The atrial system, the activity of atrial systole is started by the बताओ कौन स्टार्ट करेगा? The SP node, जो कि पेसीफर, क्योंकि ऐसे नोड में ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, उसने अपने आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल हुआ। पहले ऐसे नोड जो है सबसे पहले इनिशियली ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज ऑफ दैट द एट्रियल सिस्टोल विल व्हाट, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड से जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होंगे, ये आगे ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसको? एवी नोड को, ठीक है। तो हमारा जो ऐसे नोड का कुछ इस तरफ फिक्स, ओके, और ये जो हमारे एवी नोड है वो कुछ इस तरफ है। तो यहाँ पे पहले ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स थी, वहां से ट्रैवल हुई हमारी एवी नोड पे। तो यहाँ इसका मतलब जो वेव से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे ये पॉलिकल्स क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों ही हमारे ऐसे नोड और एवी नोड कहाँ पे है? पॉलिकल्स में। सो हमारा एट्रियल सिस्टोल होगी, ठीक है। अब एवी नोड के आगे मैंने आपको बताया Purkinje fiber स्टार्ट होते हैं, एंड व्हेन दे गेट ब्रांच्ड into right and left hand side, then that is known as the bundle of cells, ठीक है। इस तरह से करके दोनों से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो दोनों से ट्रांसफर जाएगी। So when the electrical impulse from AV node get transferred to Purkinje fiber and the bundle of cells, now the ventricles impulse will also receive the ventricles will also receive the impulse and they will start to contract. जब इंपल्स ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ आया तो वेंट्रिकल्स भी अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, वेंट्रिकल्स भी सिस्टोल में चला जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब ये बंडल ऑफ सेल्स से वापस ऊपर चला गया तो वेंट्रिकल्स से इंपल्स जा चुकी है, तो वेंट्रिकल्स वापस किस पोजीशन पे आ जाएगी? रिलैक्स्ड पोजीशन पे, एंड दिस एक्टिविटी गोज ऑन, ये एक्टिविटी चली जाएगी। यहाँ पे कुछ हम नए वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ओके। So let us understand what are they. Then आपके words हैं, one is polarization and another one is depolarization. ठीक है, depolarization का मतलब है contraction, ठीक है, and polarization मतलब जब हार्ट एक रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो हम कहेंगे हार्ट में पोलराइजेशन है। जब हार्ट में कुछ उसका हिस्सा आइदर एट्रिया या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? द हार्ट इज अंडरगोइंग और दैट पार्ट ऑफ हार्ट इज अंडरगोइंग डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो फर्स्ट वाले को मैं क्या लिखूंगी? यस, आप अपने बताओ, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। Yes,
मैम एट्रियल सिस्टोल को क्या लिखूंगी मैं? सिस्टोल है ना? Depolarization. हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको भी हम एट्रियल सिस्टोल को हम क्या कहेंगे? एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगेन क्या है? ये भी पोलराइजेशन। और मतलब क्या है आपका? रीपोलराइजेशन या Polarization. ठीक है, तो आपकी बॉडी में यहाँ पे डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा उस स्टेट में आ जाएगा, तो ये होगा आपका रीपोलराइजेशन। ठीक है, जिस स्टेट में पहले था वो वहीं पे पहुंच जाएगा। ओके, सो यहाँ पे पोलराइजेशन आपका रिलैक्स स्टेट है, मतलब जो ये था, जो ओरिजिनल स्टेट था वो वापस डीपोलराइज हो गया। तो पोलराइजेशन आपको यहाँ पे आप डीपोलराइजेशन लिख सकते हो। ठीक है, नाउ वी कम टू द ग्राफ व्हिच इज गिवन फॉर undergoing this type of test। ये एक तरह का diagnostic test है to measure the activity of our heart, whether the heart is working in a proper manner। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम दिखती है तभी टेस्ट होगा। So for a person who is going for this particular test, on his body certain this cables, electrical cables are used, okay, जिसमें बहुत हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि पर्सन को नहीं पता चलेगा, बट ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इट विल स्टार्ट गिविंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस व्हिच आर गोइंग इनसाइड द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो देयर आर सर्टेन लीड्स आप जानते हैं जो केबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने इसमें फोन में लगा रहे हैं या कंप्यूटर पे जो लेड्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या ये वायर है, और जैसे मैंने अभी ये लगाया हुआ ये लीड, ओके, एक तरह की लेड है, तो लीड, सो ये इसमें ये वायर है और जो लीड है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें देयर आर 3 लीड्स, ओके, 3 लीड्स जरूरी है, बट मल्टीपल लीड्स आर रिक्वायर्ड to measure the activity for certain period of time for measuring the whole activity of the heart। तो वैसे बेसिकली हम 3 लीड्स चाहिए, जिसमें से आपकी 2 लीड तो होती है आपके जो आपका राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है उसकी रिस्ट पे। ठीक है ना, सो यू कैन सी हियर द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ओके, 1 to each wrist and to the left ankle। ओके, दोनों ही रिस्ट पे एक लेड यहाँ पे आपको पता है इस तरह से करके कुछ मेटल रिंग्स होती है और ऐसे करके वो यहाँ पे टाई अप हो जाता है। ठीक है ना, तो दोनों लेड्स आपके रिस्ट पे आ गई। रिस्ट पे ये क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे हैं। ओके, so when they will undergo contraction and relaxation, that will be taken by that will be observed, that will be its message will be taken by the lead। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा जरूरी है, जो थर्ड लेड आपकी बच गई है वो होगी आपकी लेफ्ट एंकल पे, आपके पैरों के लेफ्ट पैर के एंकल पे। ठीक है ना, ओके, क्योंकि जो हमारी आयोटा होती है वो इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो मेजर एक्टिविटी आयोटा में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वहां से जब प्रेशर नीचे जाता है तो उसको कैप्चर करने के लिए जो लेफ्ट लेग है उसके एंकल पे एक लेड लगा दी जाती है। ये तो वो 3 लेग व्हिच आर वेरी कंपल्सरी, बट अगेन मैं ये कहूंगी कि वी कैन सी मल्टीपल लेग्स, सम ऑफ देम आर placed at the different positions of the chest। ठीक है, चेस्ट के अलग अलग पोजीशन पे भी उसको there is a substance, okay, उसको चिपका दी जाती है, शक्कर्स होते हैं उसमें, उससे चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल, if we are using multiple legs, it means it will give a clear picture of the entire activity of the heart। ठीक है, तो इस तरह से करके मल्टीपल लेग्स they are placed on the humans, on the chest or the heart position, at the rest position and at the ankle position of the person who is undergoing the particular procedure of electrocardiogram। ठीक है, now when it is started, when the process starts, okay, person को relax होता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, and फिर
थोड़ी देर में जो एक हार्ट की एक्टिविटी है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ a graphical paper comes out, एक rectangular piece of graphical paper करीब इतना बड़ा होता है, ओके यस। तो वो जो है वो बाहर आता है और उसमें कुछ आपको वेव्स नजर आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दैट वेव इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डायग्राम which is given in your book. So let's draw this diagram to understand what the waves, particular waves means. ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम। इसमें पहले एक है आपका छोटा सा ये, देन इस वे चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे आता है, एक पीक जाता है ये नीचे, फिर शेप चला जाएगा एंड दिस। Now you can see here, now here, this is the one cardiac contraction and relaxation, okay, and this P, Q, R, S, T, these are simple alphabets, okay, which are written in a linear manner, in the same manner in which they comes in the alphabetical order. So this P, Q, R, S, T, they represents the different phases of the cardiac activity. हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसकी अलग अलग फेजेस के लिए ये अलग अलग वेव्स बनती हैं, उसको शो करने के अलग अलग वेव्स के फॉर्म में वो शो होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। यहाँ पे आपको ये जो P दिख रहा है, ओके, दिस P रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट वन व्हिच इज द एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, P क्या है? एट्रियल सिस्टोल है, जिसपे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को आगे पंप कर देंगे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो ये हमारा P आ गया, एक छोटा सा वेव है, ऊपर की तरफ एक बम्प है, राइट? ओके, देन द सेकंड वन ये हो गया फर्स्ट आपका, दिस इज द फर्स्ट cycle. So P represents the atrial systole or the atrial depolarization. Atrial depolarization को ये शो करता है, ठीक है? अब उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड वन इज द QRS complex. सेकंड को हम क्या कहेंगे? QRS complex. Okay, this one is the second one. इसमें आप देख सकते हो कि ये जो वेव है थोड़ी सी नीचे आगे नेगेटिव साइड में जा रही है एंड मेजर पार्ट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, देन अगेन द वेव इज कमिंग टुवर्ड्स द लोअर साइड एंड कमिंग अप। ठीक है, सो दिस QRS complex इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ पे जो QRS है इतना ज्यादा पीक पे क्यों आया है? बिकॉज वेंट्रिकल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एट्रियल सिस्टोल। क्यों? बिकॉज जो राइट आपका वेंट्रिकल है इट हैज टू पंप द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, हार्ट के बाहर निकालना ना है ब्लड को, तो बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा तो वेव तो इतनी बड़ी बनेगी ना, इसीलिए यहाँ पे वेव बहुत बड़ी बनी हुई है ऊपर की तरफ। QRS कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पीक में शो करेगा। ठीक है ना, सेकंड रीजन इज कि दिस लेफ्ट ऑरिकल इट हैज टू पंप द ब्लड बाय मींस ऑफ एयर टू द होल बॉडी। पूरी बॉडी में इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे होना चाहिए कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो देयरफॉर दिस वेव विल शो इट्स हायर पीक। सो QRS कॉम्प्लेक्स means the ventricular, वो क्या कहता है? It means the ventricular systole। इसका मतलब क्या है? ventricular systole या ventricular depolarization। ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, एक बार आपको आज का क्लास समझ में आने को फिर आप भूलोगे भी नहीं। ओके, बस ये depolarization और depolarization को याद रखना है। ये हो गया हमारा सेकंड फेज। थर्ड हमारा आया द T। ओके, ऑरिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, फिर रिलैक्स हो गए, ब्लड नीचे आ गया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और फिर रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स ने आगे ब्लड दे दिया। अब आपका पूरा हार्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, मीन वो आगे वापस डीपोलराइज्ड स्टेट में पहुंच गया है। ओके, सो दिस डीपोलराइज्ड स्टेट इज शोन बाय अ स्मॉल वेव, और ये वेव थोड़ी सी और छोटी साइज की, आपको थोड़ी छोटी बनानी है।
Okay. So it shows the relaxation of the ventricles or the whole heart. Okay. And it represents the repolarization. Heart वापस से उस स्टेज में पहुंच जाता है. So that is the repolarization. ठीक है ना? Okay. So यहाँ पे आपके दोनों depolarized है और ये आपका repolarized है. Okay. This is the one cardiac or one heartbeat. ये जो यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंटेशन की है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन हार्टबीट. ठीक है. तो अगर हम एक मिनट में बोले तो अराउंड 72 टाइम्स होता है. ओके. सो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ these in 1 minute we can get the inference that whether our heartbeat is working in the right rhythm. ठीक है. जितने हमारे ये QRS कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतने हमारा हार्टबीट होगा 1 मिनट में. ठीक है. तो ये जो पूरा है दिस होल रिप्रेजेंट्स वन हार्ट बीट. ठीक है. इतना समझ में आया. नाउ विल सी हाउ वी कैन नो वेदर देयर इज सम डिफरेंस, whether there is certain deviation from the normal heartbeat. Normal heartbeat से अगर deviation है तो वो कैसे पता चलेगा? पहली बात तो आप पर मिनट से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये एक हार्टबीट है. ऐसे आप 1 मिनट में ऐसे देखो कितनी बार आपकी ग्राफ पे हुई है, वहां से काउंट कर लिया. दूसरा है by seeing the wave, the design of the wave. यहाँ पे ये जो आता है this is the wave or it's a graphical representation of a normal heartbeat. एक नॉर्मल हार्टबीट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये इस तरह का कुछ है. ठीक है. अगर इससे डेविएशन होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, QRS नीचे आ गया या छोटा है, ओके, T बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब योर हार्ट इज नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे. अगर T बहुत ज्यादा बढ़ गया इट मींस कि जो आपका एट्रिया है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. QRS कम हो गया इसको मींस कि वेंट्रिकल्स कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. वेंट्रिकल्स अगर कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मींस कि ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं पूरी बॉडी में. ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो वहीं से पता चल सकता है कि उस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की, कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम लग रहा है कि एनर्जी मेरे बॉडी में नहीं है. क्यों? क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप अच्छे से नहीं करता. ओके. और ये आपकी रिलैक्सेशन है. सो इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्राफ we can say that the person is having some problem in its normal rhythmic contraction and relaxation, or there is some problem in the cardiac cycle of that particular person. ठीक है बच्चों. तो ये आपको समझ में आ गया. So this whole technique, ये जो पूरी जो टेक्निक अभी हमने पढ़ी इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है. नाउ विल कम टू सर्टेन डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द हार्ट. ठीक है. सो फॉर दैट यू कैन टेक अ बुक आपके हाथ में ले सकते हो. टेक अ पेन, वहां पे मार्क करते जाना. इफ I say anything extra to you, so you can write it there. Right? Okay. Double circulation we have already learned in our previous class, so हम ये diseases भी कर देते हैं. आपके फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. That I think we have discussed in our last class. Last class में हमने हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर पढ़ा है. Who will explain it? कौन एक्सप्लेन करेगा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन? आप बेटर भी टाइप कर सकते हो क्योंकि इको आ रही है तो मुझे भी आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है. सो बेटर यू कैन टाइप इट. पहला है आपका हाइपरटेंशन. तो मैंने बताया था आपको 120/80 ml ऑफ HG. ठीक है. 120 मैंने आपको बताया था 10 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 बताया था मैंने आपको डायस्टोलिक प्रेशर. याद है? ओके. सो इफ द ब्लड प्रेशर इंक्रीज
160. This is increase in high blood, increase in the pressure in the blood, in the transportation of the blood. So this is known as high blood pressure or hypertension. इस केस में क्या होगा कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो पर्सन है वो नॉर्मल स्टेट में नहीं रहेगा, पर्सन को बहुत अजीब सा लगेगा, अनकंफर्म जो पर्सन है, ही विल फील अनकंफर्टनेस इन द बॉडी, ओके, एंड मे बी द पर्सन मे बी इन वेरी हाई टेंशन, जो पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन उसके इसमें होगा, मे बी जो पर्सन है उसको उस समय वॉमिट हो सकता है, उसको पसीने निकल सकते हैं, ठीक है, रेस्पायर बहुत ज़्यादा करेगा. सो दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है. सो आपकी बुक खुली है, मैं बुक से ही बता रही हूँ. पहला था आपका हाई ब्लड प्रेशर विच इज हाइपरटेंशन, सेकंड है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज विच इज CAD. CAD इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है. तो जो आपका ये जो CAD है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी जो नॉर्मली आर्टरी है, फर्स्ट हमने हाई ब्लड प्रेशर पढ़ा, ठीक है. सेकेंड हमने CAD पढ़ा, ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं एओर्टा, और एओर्टा आगे ब्रांच हो जाता है, तो ब्रांचेस जो बॉडी में सप्लाई करते हैं दैट इज कोरोनरी आर्टरी. अब अगर आर्टरी में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आता है, that blockage, if that blockage is due to the deposition of जैसे आर्टरी के, ठीक है, कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है. तो कोरोनरी आर्टरी, सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, आपको पता है आर्टरीज में स्पेस होगी जिसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन, ठीक है. So if at that particular place if there is a deposition of cholesterol, वहां पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो गई है, कैल्शियम की डिपोजिशन हो गई है, ठीक है. तो इस केस में जो आर्टरी की जो स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? नैरो, बिकॉज देयर कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम आयंस आर डिपॉजिटेड. तो यहाँ कैल्शियम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह हम यहाँ पे फैट भी लिख सकते हैं. एनीबॉडी हैज द हैबिट ऑफ ईटिंग मच जंक फूड, जंक फूड में सारा फैट और ऑयल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट, देखो ये जंक फूड में फैट और कोलेस्ट्रॉल क्यों डिपॉजिट होता है आर्टरीज में? क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का एक रेट, इफ व्हाटएवर यू ईट, इफ दैट इज अंडरगोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो उसके एंट्रोजेंट बनते रहेंगे. बट इफ यू ईट और इफ यू कंज्यूम मोर देन योर बॉडी नीड्स, देन जो एक्स्ट्रा है वो हमारी आर्टरीज में जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट, या स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. तो ऐसे केस में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या फैट सल्फेट गेट डिपॉजिटेड इन द कोरोनरी आर्टरी, देन एट दैट टाइम द ल्यूमेन गेट रिड्यूस्ड. इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है. सो व्हिच कैन लीड टू द कंजेशन ऑफ द आर्टरी. सो इस डिजीज को हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज एंजिना. ओके, सो एंजिना में बेसिकली आपका क्या है कि आपका जो हार्ट है, कोई नॉर्मली बात कर रहा है, आपके सामने खड़ा है या बैठा है या लेटा है, और उसको एकदम से बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो जाता है. ओके, तो दैट चेस्ट पेन इज एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. मतलब आपके हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई उस समय, देयर इज अ सीवियर चेस्ट पेन, then that condition is known as angina. Severe chest pain को हम क्या कहते हैं? angina, ठीक है. Now the next one is your heart failure, ठीक है. अगर हम एक नॉर्मल लेमैन से पूछें व्हाट इज हार्ट फेलियर, तो वो बताएगा कि हार्ट जो है वो काम करना बंद हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ठीक भी है. बट हार्ट फेलियर भी दो वजह से हो सकता है, ठीक है ना. नाउ एक तरफ से हार्ट फेलियर में क्या होता है? सपोज द लंग्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग,
so the lungs will not transport any oxygen to the heart. Okay, so the heart will collapse. Okay, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हार्ट में ऑक्सीजन तो आ गया बट उसमें हार्ट में जो उसकी कैपिलरीज है which are providing oxygen to the whole heart that are blocked and the supply of oxygen to the whole heart is restricted. So in both of the condition there can be heart failure. पहला जो है आपका उसमें है आपका कि हार्ट अटैक, इसमें आपका ए है आपका हार्ट अटैक एंड बी है आपका कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या है, सपोज योर लंग्स हैव कोलैप्स्ड, आपके लंग्स काम करना बंद कर देंगे, सो ऑक्सीजन जो हार्ट की तरफ जा रही है वो नहीं जाएगी एंड योर हार्ट will stop working. So that particular condition is known as heart attack. आपका हार्ट काम करना बंद हो जाएगा। बट रीजन क्या है, रीजन है कि जो लंग्स है, लंग्स कोलैप्स हो गए किसी भी डिजीज की वजह से या ऑपरेशन के बाद, एक सीवियर ऑपरेशन में बॉडी जो है वो कोप अप नहीं कर पाई है, ठीक है ना, तो एक वजह वो। दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या है, कार्डियक अरेस्ट में कि लंग्स ने ऑक्सीजन तो हार्ट के पास सप्लाई कर दिया है बट आपके जो हार्ट है उसमें जो कैपिलरी लेके जा रही है ब्लड किसके पास, टुवर्ड्स द वॉल, वहां पे वो उसमें कंजेशन आ गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड, जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, पूरे हार्ट को। सो इफ द वॉल्स आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, ऑटोमेटिकली जो हार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स, ठीक है। सो कार्डियक अरेस्ट एकदम से क्या होता है, आपका जो हार्ट है इट विल स्टॉप बीटिंग। सो जब इसमें क्या है, हार्ट स्टॉप वर्किंग, ठीक है, जो हार्ट है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा वर्क करना। सो दिस इज कार्डियक अरेस्ट। Both of these two can lead to heart failure. इन दोनों की वजह से आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। And one more disease is added 1 or 2 years before. So कुछ अगर आपके पास पुरानी बुक्स होगी तो उसमें आपको नहीं दिखेगा। So the fifth one, जो आपका fifth है, that is your coronary thrombosis. Okay? Coronary थ्रोम्बोसिस। हमने थ्रोम्बोसाइट्स पढ़े थे, थ्रोम्बोसाइट्स जहां पे प्लेटलेट्स पढ़ा था। ओके, सो सपोज देयर इज क्लॉट फॉर्मेशन, आपकी बॉडी में कुछ क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है एंड जो क्लॉट फॉर्मेशन है, अ स्मॉल क्लॉट इज रिमेनिंग एंड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरी व्हिच इज प्रोवाइडिंग ब्लड टू योर हार्ट। हार्ट की जो मसल्स है वहां पे जो ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन लेके जा रही है, ब्लड लेके जा रही है, वहां पे छोटा सा भी क्लॉट आ जाता है तो क्या होता है कि जो हार्ट है वो आपका कोलैप्स हो जाता है। बट इन दिस केस द कोरोनरी, इट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मींस द आर्टरी व्हिच हैज अराइज्ड फ्रॉम हार्ट से जो आर्टरी निकल रही है वो कोरोनरी आर्टरी, आयोटा के ब्रांचेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में अगर छोटा सा भी क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं करता है, so that condition is your coronary thrombosis, ठीक है। मैं दोबारा सारे आपको डिजीजेस रिपीट करें, रिवाइज कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वन। नॉर्मल वन में जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है। if your if the blood pressure increases from 120 and goes beyond it, then that is your high blood pressure. CAD is coronary artery, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, if there is a deposition of cholesterol, fats and calcium in the arteries, in the coronary artery, then automatically it can lead to the non-functioning of your heart or certain arteries, so or the coronary artery, so that is coronary artery disease. Okay, third है आपका एंजिना। एंजिना मीन्स कि एक सिवियर चेस्ट पेन हुआ है, वो कुछ भी वजह होती है,
मेन यहाँ पे वजह है एंजिना की कि if the oxygen supply to heart is stopped, so severe chest pain होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है. So that condition is known as angina. हार्ट फेलियर की दो कंडीशन मैंने आपको बताई. द फर्स्ट वन इज हार्ट अटैक, जब आपके लंग्स किसी वजह से कोलैप्स कर चुके हैं तो लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, तो दैट विल लीड टू हार्ट फेलियर. सेकंड वन इज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट मतलब एकदम से हार्ट काम करना बिल्कुल बंद हो जाए, so that is cardiac arrest. Okay, so these are the different. और लास्ट में आपके coronary thrombosis means if there is a small clot in the coronary artery, और वो clot आर्टरी से कहीं पे भी जा सकता है पूरे बॉडी में, so that condition is known as the coronary thrombosis. So students, here we have finished our chapter. एक छोटा सा बस एक और टॉपिक रह गया था, उसमें ये बस मुझे बताना था कि ये जो हार्ट है, the regulation of heart, how the regulation of heart takes place. For the regulation of heart, your SA node is required. एक नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर हम हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग देखें तो नॉर्मल फंक्शनिंग में आपका AV नोड और SA नोड वर्क करता है, ठीक है, SA नोड एंड AV नोड, राइट? ओके. And the major part of your heart, the working of heart is controlled by the brain, and brain में कौन control करता है? मेडुला. ठीक है, ब्रेन में हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला. एंड मेडुला इन टर्न कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ANS. ANS is your autonomic nervous system, which is of two types: sympathetic and non-sympathetic या parasympathetic या asympathetic. ओके, सो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक या नॉन सिंपैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की एक्टिविटीज को डिक्रीज करता है. हार्ट की एक्टिविटी मींस उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा सिंपैथेटिक, और उसको नॉर्मल वापस कौन ले आएगा? द नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, so students, here we have completed this chapter, and from the next class we are going to start the next lesson, that is we'll study about how the process of excretion takes place in human beings. Thank you students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.